وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کے لیے الصبح مختلف سائٹس کا اچانک دورہ کیا۔ ریڈ لائن BRT سے لے کر شاہراہ بھٹو اور دیگر منصوبوں پر کام کا جائزہ لیا۔ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف پروجیکٹس کا اچانک دورہ، ترقیاتی منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کا حکم۔ صبح سویرے وزیر اعلیٰ میدان میں آ گئے، ترقیاتی کاموں کا خود جائزہ لیا۔ ریڈ لائن منصوبے میں ٹریفک کی بحالی پر زور، شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات کے لیے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے الصبح ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے جیل چورنگی سے معائنے کا آغاز کیا۔ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، جام خان شورو اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور CEO ٹرانس کراچی زبیر چنہ نے منصوبے کی پیش رفت اور تکنیکی امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہفتے میں تیسری بار دورہ کرتے ہوئے افسران کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیپا چورنگی پر پانی جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل نکالنے کا حکم دیا۔ کہا کہ شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جیم میں نہیں چھوڑا جا سکتا، فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو منصوبے کا بھی دورہ کیا، جہاں 93% کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ منصوبہ عید سے قبل مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلوان گوٹ روڈ، منور چورنگی انڈر پاس اور عظیم پورہ فلائی اوور سمیت دیگر منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کراچی میں جاری BRT ریڈ لائن منصوبے پر کام تیز کرنے کا عزم، سینئر صوبائی وزیر شجر انعام میمن کا سائٹ کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیا، حکام کو ہدایات جاری کی۔ کہتے ہیں جولائی کے اختتام تک کوشش کریں گے مکس ٹریفک لین کو کھول دیا جائے۔ اقصی شاہد کی رپورٹ۔ BRT ریڈ لائن منصوبہ تیزی پکڑ گیا، لوٹ 1 اور لوٹ 2 پر کام تیز۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر CEO ٹرانس کراچی زبیر چنہ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ منصوبے کے مختلف حصوں کا خصوصاً لوٹ 1 اور لوٹ 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ FWO کو کام ملنے کے بعد رفتار میں بہتری آئی ہے۔ پہلے ٹھیکیدار کو متعدد بار وارننگز دی گئیں اور کلیمز بھی کلیئر کیے گئے، مگر کام کی رفتار تسلی بخش نہ تھی۔ کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ یہاں پہ جو لوگوں کو پریشانیاں ہوئی ہیں شہریوں کو، اس کا ہمیں مکمل طور پر احساس بھی ہے، اور حکومت یہ نہیں کہ حکومت بالکل کوئی آرام سے بیٹھی تھی۔ جب بھی آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں اتنے ہی لوازمات ہوتے ہیں۔ سینئر وزیر بولے، شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے دوران یوٹیلیٹیز مسائل کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ حکومت منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ بہت آسان تھا کہ ہم یہ نہ بناتے، یہ اتنے اربوں روپے خرچ نہ کرتے اور صرف بسیں ڈال دیتے، جس طرح ہم پیپلز بس سروس ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ نے جو آپ کے شہر کی گروتھ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں، جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے شہر آپ دیکھیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ خالی بسوں پہ گزارا نہیں ہوتا۔ شرجیل انعام میمن نے عوام کو درپیش مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی پریشانی کا احساس ہے، جلد از جلد بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سٹی 21 کی کاوش رنگ لے آئی، جوبلی سے رام سوامی شو مارکیٹ تک سیوریج کی نئی لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ رنچوڑ لائن، ہوتی مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں میں برسوں سے جاری سیوریج کے مسائل حل ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ ناگارہ سیوریج نظام سے تنگ شہری متعدد بار احتجاج بھی کر چکے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، جوبلی سے رام سوامی شو مارکیٹ تک نئی سیوریج لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ منصوبے سے رنچوڑ لائن، ہوتی مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں میں برسوں سے جاری سیوریج کے مسائل حل ہونے کا امکان۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ناکارہ سیوریج نظام کے باعث گنجان آباد علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں طویل عرصے گندے پانی میں ڈوبی رہیں۔ عام و رفت کے ساتھ کاروبار بھی شدید متاثر ہوا۔ آپ مطمئن ہوئے، پہلے نہیں تھے، اب ہوئے۔ یہ کہ
10-15 साल के बाद तो ये काम शुरू हुआ है। पानी भरा रहता था, सारा कीचड़ रहता था, हर बंदा आते जाते बोलता था पुलिस अफसर रहते हैं, ये लोग नहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता था। मगर ये है कि अब दिखने में आ रहा है कि अब काम हो रहा है। शहरियों का कहना है कि ये इलाका तिजारती और रिहायशी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसीलिए काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। नहीं जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो गटर लाइन डल रही है, ये बड़े अरसे के बाद ये काम तरक्याती काम यहाँ पे हो रहा है। पहले आए दिन कोई ना कोई गटर बंद होता था, पानी खड़ा होता था, लोगों को आने जाने के लिए परेशानी होती थी। नमाजी हजरात होते थे, कपड़े पलीस होते थे, बच्चे स्कूल के लिए जाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि सीवरेज लाइन बिछाने के साथ सड़कों और गलियों की मरम्मत का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से कराची कैंट स्टेशन पर कायम किया गया कैंप गर्मी से निढाल मुसाफिरों को फौरी रिलीफ फराहम कर रहा है। अक्सा शेख की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में कैंट स्टेशन का हीट स्ट्रोक कैंप शहरियों के लिए बड़ा सहारा। शदीद गर्मी और हब से परेशान शहरियों के लिए कराची कैंट स्टेशन पर कायम हीट स्ट्रोक कैंप किसी नेमत से कम नहीं। सफर के दौरान गर्मी से बेहाल मुसाफिर यहाँ रुक कर न सिर्फ ठंडा पानी पी रहे हैं बल्कि गर्मी से भी बच रहे हैं। शहरी कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आकर काफी रिलीफ मिला है। ठंडा पानी और सहूलतें मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा इक़दाम है। सही बात है, ये लगा हो तो परेशानी नहीं होगी बेटा, ये तो हक बनता है, पानी का मेहरबानी होगी। कैंप के अमले का कहना है कि कोशिश है ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाए। ये 10 बजे से सुबह 10 से लेकर शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक होते हैं। इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सका हम आवाम की खिदमत करेंगे। इस शदीद गर्मी की वजह से हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। शहर में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ऐसे इकदाम शहरियों के लिए किसी सहारे से कम। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग ने शहरियों और ताजरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिन में बिजली बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग ने कराची वालों का जीना दोभर कर दिया। ताजिर बिरादरी भी मैदान में आ गई। मार्केटों में लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर महमूद हामिद ने दिन के औकात में लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश न सिर्फ शहरियों के लिए खतरनाक है बल्कि कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हमें जीने दिया जाए, हमारे कारोबार भी तबाह हो रहे हैं इस लाइट न होने की वजह से। इसी तरह मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर भी यही हाल है। मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा कि बाबर मार्केट के अंदर भी लोड शेडिंग का ये हाल है और महीनों से ये हाल हो रहा है। बार बार उनसे कहते हैं कि दिन में जो कारोबारी औकात है उसमें आप लाइट को जारी रखें ताकि लोग कारोबार कर सके। महमूद हामिद ने खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो 2015 जैसी हलाकतों का खदशा है। हमें जो है वो 2015 की लोड शेडिंग याद आ रही है कि अगर इस गर्मी के अंदर के आग बरसा रहा है सूरज और लाइट नहीं है घरों के अंदर और दुकानों के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह कई हजार लोग जो है वो इस गर्मी और इलेक्ट्रिक की ना होने की वजह से और इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से लोग हलाक न हो जाए। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत फौरी इकदाम करे और कारोबार को तबाही से बचाया जाए। कराची में पारा हाई हुआ तो शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ फलों का शरबत पीते दिखाई दिए। कहते हैं शदीद गर्मी में ठंडे मशरूब तस्कीन दिलाते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग में इजाफा। गरीब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, कोई कमत का गन्ने का जूस है वो पी रहे हैं, कोई फ्लोरा पे जाकर कोई जूस वगैरह पी रहे हैं। गर्मी बहुत है, बिल्कुल गर्मी है। हम आज ही बलूचिस्तान से आए हुए हैं कराची। हमने सोचा कि यहाँ की जो है ना मौसम अच्छी होगी, तो हम जैसे ही इधर आए तो इधर वाकई बहुत गर्मी है। दुकानदारों का कहना था कि गर्मी में घरों से बाहर निकलने वाले शरबत का इस्तेमाल जरूर करते हैं। देखो गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है तो हमारा जो फालसा है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फेमस है, चलता है। और लेमन सोडा हो गया, तरबूज हो गया, इसके अलावा मिंट मार्गेटा है, मौसम्बी है, एप्पल है। शहरियों का कहना है कि ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में मदद मिलती। एरिया भीमपुरा में बल्दियाती सहूलियात नापैद हो गईं। इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। पानी और गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल भीमपुरा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया।
रिहायशियों के मुताबिक इलाके में गुज़िश्ता 4 साल से गैस की फरहमी मुअत्तल, 1 माह से पानी भी नायाब हो चुका। शदीद गर्मी में पानी की अदम दस्तियाबी ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज करके रख दिए हैं। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। गैस भरवाते हैं तभी खाना खाते हैं, आधा तनख्वाह जो गैस में चली जाती है, पानी लेते हैं उसमें चले जाते हैं। भाई हम लोग ये नहीं है कि गैर मुस्लिम है तो हम लोग को इतनी परेशानी हुई, नहीं करो इतना, नहीं लाइट, चलो लाइट वाले तो लोड शेडिंग करते हैं तो आधा घंटा लाइट आती है, मगर इतना नहीं करो भाई, गैस दियो, 4 साल हुआ। शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पानी जो सही यहाँ पे कम से कम 3-4 महीने से परेशानी हो रही है, आता है 10 मिनट 20 मिनट, इससे ऊपर नहीं आता है। हमारे पास बिल्कुल गैस नहीं आती, ना पानी ना गैस ना लाइटें भी पूरा दिन नहीं होती। वो तकरीबन जो है ना काम भी नहीं होता तो लोग क्या करेंगे, परेशान, चूल्हा जलाना है ना, चूल्हे लोग कैसा काम चले। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी और गैस की फराहमी बहाल की जाए ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शारे फैसल पर स्पीड लिमिट में इजाफा, मगर साइन बोर्ड ताहाल पुराने। ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ाने का फैसला तो कर लिया गया, मगर अमद में सुस्ती वाज़ेह नजर आने लगी। शहरी अब तक नई रफ्तार से लाइल्म हैं। 7 रोज़ गुजरने के बावजूद स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड तब्दील नहीं हो सके। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नई स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी गई। हैवी गाड़ियों के लिए रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर है। कार, मोटरसाइकिल और LTV के लिए 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की हद नाफिज की गई है। ये फैसला ट्रैफिक के बहाव और हादसात के जायजे के बाद किया गया। DIG ट्रैफिक की जानिब से 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 7 रोज़ गुजरने के बावजूद स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड तब्दील ना हो सके। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नई स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी गई। हैवी गाड़ियों के लिए रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर है। कराची में गैस बंदिश और कम प्रेशर के बायस शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि गैस ना होने के बावजूद भारी बिल अदा कर रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस बंद, LPG महंगी, शहरी दौरी अजियत का शिकार। कराची में गैस की मुसलसल बंदिश और कम प्रेशर के बायस शहरी परेशान, मुतबादिल के तौर पर महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 390 से 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी, हालांकि सरकारी कीमत 304 रुपए किलो मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि गैस न आने के बावजूद भारी बिल मौसूल हो रहे हैं। महंगी LPG भी इजाफी बोझ बन रही है। अभी तो गैस का चूल्हा बिल्कुल पैक करके रख दिया और गैस का बिल कितना था, 1800-2000 रुपये बिल आता बगैर चूल्हा जालने में, चूल्हा जालता नहीं है। शहरियों ने शिकवा किया कि दिहाड़ीदार तबके के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है। तो घरों के बिल अलग पे किए, 2-3 हज़ार रुपये पे किए जा रहे हैं और ये आए दिन कभी गैस के कभी 450, कभी 400, कभी 380। अभी भी मैंने 1.5 किलो भराया, ये 600 रुपये चले गए। 1000 रुपये का नोट दिया मैंने, उसमें से मुझे 400 रुपये बकाया मिले। अब कहने का मकसद है 5000 भी लेके निकलो तो फिर भी आप अपने घर के मुकम्मल राशन पानी नहीं ले जा सकते हो। इतनी महंगाई की हुई है, अभी घर के गैस के बजाय पानी निकल रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए, किसको बोले। शहर में गैस लोड शेडिंग के साथ कम प्रेशर का मसला भी बरकरार है, जिससे घरेलू खवातीन, पकवान हाउसेज से वाबस्ता अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 20।